हेलो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। बहुत लोगों ने बिग बॉस के बारे में बोलने के लिए बोला है। तो बिग बॉस 24/8/2025 को चालू हुआ था। मेरा देखने का तरीका है चंद्र लग्न। आपके दशा भी चंद्र से होती है, आप सोचते भी चंद्र के मारे हैं, आप नक्षत्र भी चंद्र का होता है, तो सब चीज़ें चंद्रमा से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जुपिटर, आई गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू जुपिटर। बाय दिस मेरा मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, एंड देयर इज नो वन मेथड बाय विच वन कैलकुलेट, इट्स माय वे, एंड इट इज जो कि हमारे ग्रंथों में लिखा उस हिसाब से, बट the technique has to be evolved. So with that, I see Sun is in Leo, which shows the program will be successful. No doubt about it. I'm very sure about the program will be successful. Mercury and Venus are together, which shows it will provide entertainment and good entertainment. लोग बात करेंगे, लोग खींचातानी करेंगे, लोग they will discussion होंगे, and it will provide entertainment, that is important. चौथे घर में तो masses को entertainment provide करेगा, और 12th हाउस में है तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से रात में ही अच्छा होता है, तो लोग रात में देखेंगे and they will really enjoy the program. So this is very important for this whole thing. In the most and the other most important thing which I see here is जो masses का होता है वो प्लैनेट सैटर्न होता है। सैटर्न इज रेट्रोगेट, इट इज इन पीसेस, पीछे वाले घर में भी जाता है, तो एक्वेरियस में जाता है, राहु के साथ जुड़ रहा है। जब सैटर्न राहु साथ में आते हैं तो ये एक तरह के बहुत सारे थीम्स लेके आएगा, एंड दोज थीम्स विल बी रिलेटेड टू कम्युनिटी, ग्रुप्स, ग्रुप डायनामिक्स, कार्मिक डेस्टिनी। केतु भी है तो लोग कार्मिक डेस्टिनी के बारे में बात करेंगे, लोग इमोशंस के बारे में बात करेंगे। सन तो लोग there will be a lot of discussions on prestige, ego, and politics. Those kinds of things will be there. So net, I see a good future for Big Boss season 19. It will be much better than जो पहले हुए हैं. It will be a bigger success, and the content which it will finally produce by the number of people I understand जो interact करते हैं वो अच्छा होगा. Reason, Sun in Leo with Ketu. Here Sun, Moon and Ketu divide करता है. इस प्रोग्राम में यही होता है कि कौन कितना किसको काट रहा है. So I'm trying to make you understand astrology also. So इस परिप्रेक्ष्य में this Sun, Moon, Ketu will have people having ego, trying to दूसरे के ego कम करने की कोशिश करेंगे. Moon आदमी के इमोशंस होंगे, उनके इमोशंस को काटने की कोशिश करेंगे. साथ में आगे सैटर्न राहु देख रहा है, तो देयर बी ग्रुप ऑफ पीपल थिंकिंग ऑल्सो. मर्कुरी एंड वीनस इज 12th टू मून, तो मर्कुरी भी होता है बात करने का, होता है हाथों के काम का होता है. वीनस इज प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट. इट इज इन द हाउस ऑफ कैंसर. कैंसर मासेस का होता है, मासेस के लिए अच्छा है. जुपिटर at the end of the day looking at 7th house, so there will be no negativity. Rahu will give its results. Rahu is in Aquarius, Saturn के साथ. Saturn retrograde होकर पीछे देख रहा है, तो जब भी Saturn retrograde Aquarius में जाएंगे तो ये ग्रुप थीम्स के बारे में, कम्युनिटीज़ के बारे में, ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में, कार्मिक डेस्टिनी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में होगा. मंगल और शनि देख रहे हैं तो आपस में एक दूसरे का आपको लड़ाई झगड़े का तड़का भी मिलेगा. दिस इज व्हाट Big Boss 19 will be. So therefore Big Boss 19 A will be success, a good entertainer for masses, a good content which will have right from community themes to group dynamics, and a lot of other larger issues, plus a lot of Mars and Saturn ladai jhagda tadka bhi hoga. So, and total, because Jupiter looks at Rahu, it will generate money also for the people who have made it good amount of money, A, and number two, it will be a very big success also. So this is what I see about now Big Boss 19. Now let me there's been a lot of demand of people who have been acting, and who are there, and who would be good, who would be bad, what they will do. I cannot say who will win, who will lose, etc. But एक horoscope लेकर I will try to explain in brief about people. Let us see Salman Khan. Salman Khan was born on 27/12/1965. The chart is at the back. उनका आप देखिएगा सूर्य जो है वो बहुत पावरफुल है, मून भी पावरफुल है. तो और सूर्य मून ऐसे घर में है, सूर्य ऐसे घर में है
जो कि साइगिटेरियस इन्फ्लुएंस है, जुपिटर का इन्फ्लुएंस है, जहाँ की वो ये बता रहा है कि मतलब यू हैव द इंटेलेक्ट, मून हैज़ द एग्रेशन, और जुपिटर होता है इंटेलेक्ट एग्रेशन दोनों को बराबर से कैसे डील करेंगे. सो ही विल बी एबल टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ काउंसलिंग, ही विल बी एग्रेसिव ऑल्सो, एंड अच्छी तरह डील भी करेंगे. इट विल बी अ गुड इन्फ्लुएंस. In fact, it will be a very positive thing for him. Salman Khan, again, I've told you, after 2028, he will do something. Some movie will come where again he will become a very big superstar also. This is not in contest, but I'm telling you this. This is not in contest of this, but just to say, एक मैंने पहले अपने वीडियो में बोला है. Another person which I see here, जिसकी पत्री बहुत अच्छी लगती है, मेरा ठीक लग रही है, वो है गौरव खन्ना. उनका सन एंड मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसमें उनकी जो पूरी किरदार होगी वो एक लीडरशिप का किरदार होगा. सो दैट विल कम आउट वेरी क्लियरली. देन इज देयर इज अशनूर कौर. उनका मैं देख रहा हूँ कि वीनस एंड मरकुरी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे हैं. शुक्र और बुध, जब शुक्र बुध बहुत वो करते हैं तो ये डिप्लोमेटिक वे में, मतलब किस तरह डिप्लोमेसी करेंगी और किस जल्दी से आंसर देंगी, डिप्लोमेटिक आंसर करेंगी, और अपने आप को शी विल बी एबल टू कीप हर सेल्फ इन द होल सिस्टम. जो आवेश दरबार का एंड नगमा मिर्जेकर का जो मैं देख रहा हूँ, इनका एरी साइंस बहुत पावरफुल लग रहा है मेरे को. और इनके अंदर जो मेरे को लग रहा है क्रिएटिविटी जो होगी, क्रिएटिविटी, कुछ चीज़ बैठे बैठे बोलना है, स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन जो होगी, एकदम स्पॉन्टेनियस, एकदम से फटाफट कुछ जवाब दे देना, हाजिर जवाब जिसे कहते हैं ना हम लोग हिंदी में, वो चीज़ होना बहुत अच्छा रहेगा. दैट विल बी वेरी थिंग दे विल बी विद आवेज एंड नगमा, बिकॉज एरी साइंस आर वेरी 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 हेवीली लोडेड एंड गुड. सो हाई एनर्जी होगी, बहुत हाई एनर्जी होगी, ये क्रिएटिव भी होंगे और स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन भी इनका अंदर होगा. उसके बाद बसीर अली का मैं देख रहा हूँ, इनका मून, चंद्रमा और मंगल बहुत स्ट्रांग है, तो देयर विल बी डोमिनेंस होगा, डोमिनेशन का होगा, और रेसिलेंस होगा. रेसिलेंस इन हिंदी वुड बी, आई मीन एनीबडी हु सिंग एस्ट्रोलॉजी शुड नो हिंदी एंड इंग्लिश, आई एम श्योर, बिकॉज लैंग्वेजेस जाना चाहिए. तो रेसिलेंस ही विल बी, मतलब अपने आप को अडाप्ट कर लेंगे, एकदम से चेंज करने की एक एक्टिविटी रहेगी. तो डोमिनेंस भी रहेगा, रेसिलेंस भी रहेगा, और जल्दी से अडाप्ट कर लेंगे. अडाप्ट उसमें अपने आप को उसी में अपने आप को ढाल भी लेंगे. देन वी हैव पीपल लाइक तोमर, हुनार अली, पायल, जीशर, अभिषेक बजाज, शफाक नाज. इनका जुपिटर एंड सैटर्न इज स्ट्रॉन्ग. तो मतलब I would say that they'll all compete, they will be there, sustained efforts करना पड़ेंगे, थोड़े से रहेगा इनके अंदर, और luck should play an important role. Important people which I would see, one very important person I would like to mention here is Tanya Mittal. इनका वीनस, मरकुरी और सैटर्न तीनों एक्टिवेट हो रहे हैं. जब ये तीनों प्लैनेट शुक्र, बुध और सैटर्न एक्टिवेट होते हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये इनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी, और एक अच्छे जर्नी की शुरुआत लाइफ के टाइम होगी. दैट्स व्हाट आई सी इन अ हॉरोस्कोप. आई ऑल्सो सी वीनस मरकुरी जब भी साथ होता है, एक आदमी का इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बनाता है, नंबर ऑफ चीज़ें काम करने का क्षमता देता है, और अडेप्टेबिलिटी भी देता है, चार्म देता है, और सक्सेस देता है. टू कंक्लूड इट, आई वुड से गौरव सूर्य मंगल के कारण बहुत अच्छा करेंगे, अशूर कौर वीनस और मरकुरी के कारण अच्छा करेंगे, तानिया मित्तल मरकुरी वीनस सैटर्न मैंने बताया, बसीर अली मून और मार्स, और अवेश दरबार एरी साइंस. इनका मेरे को अच्छा बहुत लग रहा है, हॉरोस्कोप में बहुत स्ट्रांग लग रहा है, जो कि मैंने और समझाया भी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. मैंने और भी चीज़ें देखी हैं. गौरव खन्ना जी का देखोगे नक्षत्र के हिसाब से, गौरव खन्ना मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए हैं. ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1981, 2 PM. इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, मगर नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र है. मृगशिरा नक्षत्र वाले हरदम एक बहुत अच्छी आदत में होती है कि जो भी सीक्रेट होता है उसको खोल देते हैं. दे आर वेरी बिग गुड डिटेक्टिव्स. तो ये अपने जो भी होगा इसके अंदर डिस्कशन में
कुछ चीज़ें छुपी जो होंगी उसको खोलने की क्षमता रखेंगे, एंड वेरी गुड टॉकर, एंड ही विल नो हाउ टू चेस करना जानते हैं, पीछे भागना जानते हैं। और ये ऐसे लोग हैं तो एकदम से बदल जाते हैं, एकदम से सॉफ्ट भी हो सकते हैं, मतलब एकदम से सॉफ्ट भी, प्यारे भी हो सकते हैं, और गुस्सा है तो गुस्सा भी दे सकते हैं। ये मृगशिरा नक्षत्र के लिए ये बहुत दिस पर्टिकुलर बिग बॉस इज very good. Similarly, if I look at the nakshatra of Ashur Kaur, और मेरे को नाम के लिए माफ़ करिएगा, नाम लेने के लिए अगर कुछ गलती हो रही तो, अशूर कौर और तान्या मित्तल, इन दोनों का जो है ये चित्र नक्षत्र है, और चित्र नक्षत्र अपने आप में बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, चित्र है, मतलब आर्किटेक्चर है, विश्वकर्मा है, आप बना रहे हैं, मतलब दे आर लाइक into this play, and they will also do very well in this. Also, if you look at the moon signs, गौरव जी का मून साइन टॉरस है, टॉरस चंद्रमा होता है, एग्जॉल्टेड होता है, दिमाग के बहुत धनी होंगे, प्लस मृगशिरा नक्षत्र है, तो दोनों को मिलाकर ही विल बी एबल टू डू प्रोवाइड गुड एंटरटेनमेंट एंड विल बी वेरी गुड। अशूर कौर और तान्या मित्तल दोनों विर्गो, मतलब विर्गो में हैं, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, बट दे नो हाउ टू डिस्प्यूट करें कैसे और डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे करें, मतलब किस तरह एक इशू को बनाएं और इसको रिजॉल्व भी कैसे करना, ये एक क्षमता होती है। प्लस अदर थिंग्स आर आल्सो व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, सो दिस इज आल्सो सीन बाय देयर चार्ट थ्रू चंद्रमा। तान्या मित्तल भी ऐसे, मैंने आपको बताया, वो भी जो उनका नक्षत्र है वो बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, उनका भी उत्तरा फाल्गुनी हस्त नक्षत्र के बीच का नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र ऐसा होता है कि जिसमें कि शादी विवाह होते हैं, आदमी बिचौले का काम करता है, तो ये भी इनका वही नक्षत्र ऐसा है जिससे कि ये मतलब जो कि बिग बॉस में जो चाहिए होता है करने के लिए, हैव अ डिस्प्यूट, रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, एंटरटेनमेंट करना, कुछ और बाकी चीज़ें जैसे मैंने पहले भी समझाया प्लैनेट्स के थ्रू, वो सब चीज़ें भी इनके अंदर हैंगी। इसी तरह अवेश दरबार, अगेन आई रिपीट, इनका भी ये 1993 मुंबई महाराष्ट्र बॉर्न है, चार्ट्स पीछे आ जाएंगे। ये भी पूर्व भद्रपाद, उत्तर भद्रपाद नक्षत्र में है। तो ये लोग ऐसे होते हैं जो कि विक्ट्री की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, दे विल ऑलवेज ट्राई टू गो टूवर्ड्स विक्ट्री। हमें इनका ये उद्देश्य रहता है कि हम जीतें, जो कि अलग है दूसरे लोगों से। तो इस हिसाब से मैंने अपने तरीके से आपको बता भी दिया है कि कौन से लोग मतलब मेरे को लगते हैं जिनके अंदर इस पर्टिकुलर प्ले में, इस पर्टिकुलर गेम में, व्हाट इज़ हु विन्स एंड हु लूजेस एंड व्हाट यू शुड हैव, उसमें जिनमें क्या मतलब they have the potential, so that I have told you, so that you can pick up. The program is going to be good, it is going to be a big hit, as I also explained, and I think with this I can मैं इस वीडियो को I would like to end it, because in a brief way I have explained you about the program, about the people, and about the 3 to 4 people who I see who have the potential of moving forward and doing well in life in this particular program, and also further even after this program they'll do well. Basically they'll do well in life. Thanks. Thank you very much.